This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کا پروگرام اہل قلم اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ایک نعمت بھی یہی، ایک قیامت بھی یہی، ایک نعمت بھی یہی، ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں وطن عزیز کے معروف اینکر پرسن، دانشور، کمپیئر، لکھاری، کالم نویس، تبصرہ نگار، سماجی رہنما، 5 کتب کے خالق، گویا ہمہ جہت شخصیت کے مالک، شاعرانہ اور ادیبانہ ذوق رکھنے والے جناب عامر شہزاد صدیقی موجود ہیں۔ میں انہیں مکس نیوز کی پوری ٹیم کی اور اپنی جانب سے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ عامر بھائی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بلکہ ایک تھوڑی سی بات میں آپ کی بات سے پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ مکس نیوز کا اسٹوڈیو سے غنیمت بن کر شہر اولیاء میں آیا ہے، اور اکمل بھائی صاحب اپنی بڑی زبردست محنت سے اس کو روز بروز اس میں دن رات اضافہ کر رہے ہیں، اور اس کی بڑی اشد ضرورت تھی یہاں، اور اس ضرورت کو بہر طور کسی طور پورا کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً لائق داد تحسین ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ عامر صاحب، آپ کی زندگی کا جو ذائچہ میرے پاس موجود ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی ایک چیز پر بھی گفتگو شروع کی جائے تو شاید ہمارا سارا پروگرام اسی پر ختم ہو جائے۔ تاہم میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کامیابیوں کا سفر ہے، یہ مسلسل کاوش و محنت کا ثمر ہے، یا محض اتفاقات زمانہ ہیں، یا کوئی اور ایسا امر جو میری نظروں سے پوشیدہ ہے؟ واہ، کیا بات ہے جناب! دیکھیے، محض اتفاق زمانہ اس لیے نہیں ہو سکتا، اس سے صرف سیاسی سیٹیں جیتی جا سکتی ہیں۔ واہ! لہٰذا یہ جو قلم اور کرتاس کا سلسلہ ہے نا، جو ایک سفر ہے، یہ سوائے محنت کے اور سوائے سچائی کے ہو نہیں سکتا۔ واہ واہ! تو ایک مسلسل محنت ہے، اور یہ محنت 1977 سے ہو رہی ہے۔ خوب۔ اب دیکھیں 2021 ہے، 23 سال وہ ہیں، 21 سال یہ ہیں، کتنا وقت اس محنت پہ لگا ہے کہ آج راجہ کوثر سعیدی جیسا بہترین پریزنٹر، بہترین اینکر، اللہ یہ لفظ کہیں کہ میرے لیے سند بن جائے کہ تبصرہ نگار ہیں، اینکر ہیں، رائٹر ہیں، لکھاری ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں، تو یہ جو سند ہے، یہ 42-43 سال کی محنت اور مسلسل مشقت کے بعد اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج مجھے یہ سند حاصل ہوئی ہے۔ واہ! ناظرین، میں عامر شہزاد صدیقی سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ چیئرمین سویل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بھی ہیں، تو سویل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ علم و ادب کے فروغ میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ تو آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کس طرح شروع کیا اور آج کہاں تک پہنچا۔ رج صاحب، اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ سویل چونکہ ایک ہے تو ڈیولپمنٹ کے نام سے فورم، مگر ایک سلسلہ اویئرنیس پر ہے، اور اویئرنیس کے بعد جو اس کا سب سے بڑا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ ہے یہ علم و ادب کی خدمت کرنا، اور سویل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن علم و ادب کی بڑی بھرپور خدمت کر رہی ہے، یعنی کتابوں کی رونمائی کرا کے، مشاعرے کرا کے، مذاکرے کرا کے، علمی مباحثے کرا کے، اور وہ شخصیات جو کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہیں ادب میں، ان کے بارے میں اچھے پروگرام آرگنائز کر کے میں اور میری ٹیم، اچھا دیکھیے، فرد واحد کچھ نہیں ہوتا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ میں عامر شہزاد ہوں تو مجھے عامر شہزاد بنانے والے میرے چند دوست ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں، جس میں محترمہ یاسمین خاکوانی اس کی پریزیڈنٹ ہیں، انہیں آئرن لیڈی کہا جاتا ہے، منور خورشید صدیقی صاحب اس کے جنرل سیکریٹری ہیں، عامر نقشبندی صاحب ہیں، روحانی علمی ادبی شخصیت ہیں، ملک آصف عوان صاحب ہیں، تاج محمد تاج ہیں، ابرار بھائی ہیں، اور چند 2-4 خواتین ہیں۔ مطلب ان کے دم سے ہم اس قابل ہوئے ہیں، ہم یہ چیزیں ترتیب دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ترتیب دے کے میں نے تیرا نام لکھ دیا۔ واہ!
تو ہم یہ جو ترتیب دیتے ہیں تو کوئی نام لکھنے کے لیے دیتے ہیں. بکھری پڑی تھی ٹوٹ کے کلیاں زمین پر, واہ, ترتیب دے کے میں نے تیرا نام لکھ دیا. واہ 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 برسوں کے کا انجام لکھ دیا. واہ واہ, خوب ہے. کاغذ پہ شام کاٹ کے پھر شام لکھ دیا. واہ واہ واہ, بکھری پڑی تھی ٹوٹ کے کلیاں زمین پر, واہ, ترتیب دے کے میں نے تیرا نام لکھ دیا. واہ واہ واہ. ناظرین, اسی سے متصل دانشور فورم بھی ہے. آپ اس کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں, تو یقیناً دانشور فورم جو ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. بانی جنرل سیکرٹری. تو آپ ذرا اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ دانشور فورم جو ہے وہاں کس انداز سے دانش کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اچھا, دانشور فورم راجہ صاحب اس طرح نہیں تھا کہ کوئی وہاں دانش کو فروغ دیا جائے گا یا دانش کی ترویج کے لیے کام کیا جائے گا. وہ اہل دانش کا ایک حلقہ احباب ہے, جہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہمارے خطے کے وہ مسائل جس کا براہ راست سامنا ادب سے, لٹریچر سے جڑا ہوا بندہ کرتا ہے, اس کے مسائل کے حل کے لیے دانشور فورم بنا تھا, اور اپنی دانش سے ان مسائل کے تدارک کی تجاویز بھی دیتا ہے, اور اس خطے کی یعنی وسیب کی ترقی اور ترویج کے لیے اور اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو ہمارے صاحبان اقتدار ہیں ان تک اپنی تجاویز یعنی اہل دانش کی نظر گزار کے وہاں پہنچانے, گویا جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے. بلکہ آپ نے بڑا اچھا کیا یہ لفظ استعمال کیا. میں خود اس کے اوپر میں نے بہت پروگرام کیا ہے محرومیوں کا. میرا اپنا جو پروگرام چلتا رہا 2 مئی تقریباً 2.5 مئی چلا ہے, یقیناً محرومیاں وسیب کی آخر کب تک, یہ عنوان تھا. بالکل صحیح. تو ان محرومیوں کو, وہاں اہل دانش کے مسائل کو, اہل دانش کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہم نے دانشور فورم پر ڈسکس کر کے, بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں فرحت اللہ بابر بنے تھے, اس وسیب کے جنوبی پنجاب کے وہ کوارڈینیٹر بنایا تھا, انہوں نے تجاویز مانگی تھی, تو سب سے پہلے اور سب سے مرصع تجاویز بھیجنے والا جو فورم تھا وہ دانشور فورم تھا. یہ ہمارا اعزاز ہے. آپ ممبر ڈسٹرکٹ ٹریفک کمیٹی اور ممبر ڈسٹرکٹ ای لائبریری بھی ہیں. جی. اب یہ دونوں چیزیں گو الگ الگ ہیں, کیونکہ ای لائبریری کا تعلق بھی فروغ ادب سے یا ادبی سرگرمیوں سے ہے, لیکن یہ جو ٹریفک کمیٹی والا معاملہ ہے یہ ذرا مختلف ہے. جی ہاں. تو اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین ذرا دلچسپی رکھتے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ وہاں آپ کا کیا کردار ہے. اچھا, اس میں ایک قدر بڑی مشترک ہے, معاملہ سپیڈ کا ہے دونوں جگہ. واہ واہ, خوب ہے. وہاں بریک اور ہاتھ اور دماغ کا اور یہاں بھی دماغ کا استعمال ہے, مگر مسئلہ قدر مشترک دونوں میں جو ہے وہ سپیڈ کی ہے. تو مجھے جب منتخب کیا گیا ای لائبریری کے لیے, یہ اب سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے, جب یہ قدیمی لائبریریوں کو جو ہمارا ورثہ ہے انہیں ای لائبریری میں لانے کے لیے کاوشیں ہو رہی تھی, تو تب زاہد سلیم گوندل صاحب یہاں ڈپٹی کمشنر تھے, تو انہوں نے مطلب پوری ایک ٹیم تشکیل دی جس میں میرا نام دیا گیا, جو تجاویز جنہوں نے دی تھی, اور یہ آپ کے سامنے پورے پنجاب میں آپ نے دیکھا یہ لائبریری قائم کی گئی. اچھا, بڑا خوبصورت ادارہ یہ بنا, بہت, میں تو سمجھتا ہوں ایک اور ہمیں مقام مل گیا تھا اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے, لیکن اسے نظر لگ گئی مجھے لگتا ہے. بس وہ آپ کی اور ہماری ہی لگتی ہے. نہیں, ہماری نظر نہیں, ہماری اب نظر خود کو نہیں لگتی. نہیں, نظر اپنی دوسرے کے لیے ہوتی ہے. تو مطلب کہیں سے کچھ ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مل کر کوئی ایسی سازش کی, مگر ہم اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی تک ہم وہ پیوستہ شجر ہیں, اور ہم نے اس سے متعلقہ منسٹریز کو خط لکھے ہوئے ہیں. دانشور فورم نے اپنا رول ادا کیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو لاکھوں کروڑ روپے لگا کے یوں وائڈ اپ نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا, کتب سے دور کر دیا. اچھا, سپورٹس والے کو دے دی. اب بتائیں کہ علم کا کام کھیل والا جس نے ہاکی ٹرک کو آپ تعلیم سے موازنہ نہیں کر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو ہم نے کہا کہ اس کو واپس لے آئیں. وہ معاملہ کچھ اور ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے. بالکل. اب آ جائیں جو ٹریفک کمیٹی ہے. میں نے 2 مضامین لکھے تھے ٹریفک کے اوپر, اور شریف ظفر صاحب تھے سی ٹی او ملتانیہ, ان کی کتاب آئی, اس کی رونمائی کے موقع پر اس وقت جو آر پی او صاحب تھے انہوں نے میرا نام دیا کہ میں نے ان کے مضامین پڑھے, ان سے خطاب. اب میں چونکہ باہر رہا ہوں, کنٹری سے باہر رہا ہوں, میرے ہاں ٹریفک کو بیان کرنے کا سلیقہ کچھ اور تھا. واہ. اور اس طریقے کی بنیاد پہ انہوں نے مجھے جب سنا تو انہوں نے کہا بھی اس بندے کو ٹریفک کمیٹی میں, یہ ٹریفک کمیٹی کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ہے شہر کے اندر پائی جانے والی بے ہنگم ٹریفک کو تھوڑا سا سیولائز کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیتے ہیں. بالکل صحیح. کہیں کوئی برائی دیکھتے ہیں یعنی ٹریفک کی, اس کو فٹافٹ ہم کیچ کر کے وہاں بھیج دیتے ہیں. ایک پورا گروپ بنا ہوا ہے, اس میں فوری ایکشن ہوتا ہے, اور اس چیز کو اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو آپ اس کی پک کھینچیں, مجھے بھیجیں,
या जो भी ट्रैफिक कमेटी का मेंबर है, हम आगे उसको भेज देते हैं, बिल्कुल उसका सेक्टर इंचार्ज फौरी तौर पे उसको रिमूव कराता बिल्कुल है ऐसे ही। और ये हुक्म आरपीओ साहब का है। वाह, जी तो गोया उसमें भी आपका बड़ा कलीदी किरदार है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहाँ तक अकलो फरासत काम देती है, यकीनन ये समाज की खिदमत हो रही है, अच्छा वतन मैं की कभी खिदमत हो कभी रही ये है। कहता हूँ मैं साहिब फरासत हूँ या नहीं, बायसे फरासत हूँ। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत है। अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो ख़ानदान है, आपके जो असलाफ हैं, यकीनन इस खित्ते में, इस वसेब में उनका एक बड़ा नाम है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाजरीन उस हवाले से भी आपके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में जानना चाहेंगे। दो बातें याद आ जी। गई आपके सवाल से। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जानना चाहता हूँ। एक अनवर मसूद साहब का एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है, यानी छोटे से पीस है जो टीवी पे चला था, वो मज़ाक लिखते हैं और बड़ा बरबला खूब लिखते हैं। लिखते उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पीता। उन्होंने कभी हम ये तो ऑन एयर नहीं जाने देंगे। वाह। उन्होंने कहा फिर इसको क्या करें, मेरी तो सारे कलाम में पीता। उन्होंने कहा इसको तब्दील करो या नज़म और पढ़ो। कि नज़म तो यही पढ़ूंगा, लफ्ज़ बदलता हूँ। तो उन्होंने पीते की जगह पपीता इस्तेमाल किया और बड़े वजन में था। वाह, वाह। हर मिसरे के उसमें मोइन अख्तर था मरहूम, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, क्या फनकार था। तो अगले भाई क्या खूब पपीता इस्तेमाल किया है आपने। अब ये जो जानना है, ये कभी कभी अदा करते हुए डबल नून का सिंगल नून अदा होता है, अगला नून अदा नहीं होता। सही फरमाया। उन्होंने कहा जी मैं जानना चाहता हूँ। वाह वाह, मुझे छोड़ के आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मेरे साथ रहिए प्रोग्राम के आखिर तक। सो आप भी मेरे साथ रहिए। असलाफ का जो सिलसिला डिस्कस किया है ना हुजूर आपने, ये चीज़ें छुपी हुई नहीं होती, ये सामने होती हैं। किताब गवाही दे रही होती है, तारीख गवाही दे रही होती है, समाज गवाही दे रही होती है, मुआशरा गवाही दे रहा होता है और अफराद गवाही दे रहे होते हैं। हर चीज़ पर नक्श है, नक्श है ना ये। हाँ, इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। नक्श से क्या याद आया कि मेरे ख्वाब का हर एक नक्श मिटा दे कोई। वाह। सूखे पत्तों का बिछा ढेर जला दे कोई। वाह, है ना सर। वाह। मेरी पहचान का एक शख्स इसी शहर में रहता है, वाह। मैं भी जिंदा हूँ, उसे जाके बता दे कोई। वाह वाह जी। वाह। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे से वापसी के बाद जनाब आमिर शहजाद सिद्दीकी से पूछेंगे कि घंटाघर के पास जो उनकी कदीमी हवेली थी, वो उसकी क्या हैसियत थी किसी ज़माने में। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो मैं फिर रौनक इनएविटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना। हाथों को पास ना आए कभी कोरोना।
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल इटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई, फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर शहजाद सिद्दीकी से बात हो रही थी उनकी ख़ानदानी हवेली की, जिसकी तस्वीर मैंने मुतादिद बार उनके फेसबुक पर देखी। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, बल्कि हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि उस हवेली के बारे में, उस कदीमी हवेली के बारे में और अपने असलाफ के बारे में हमें बताइए। राय साहब, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इस अहद का बंदा था ही नहीं। वाह। मुझे हर वो कदीम इमारत जिसमें से कोई वकार झलकता है, जिसमें से कुछ शराफत की बू आती है, जिसमें से इंसानियत की कदरें नजर आती है, क्या खूबसूरत बात, जो अपनी तामीराती हुस्न से ही अपना नाम और अपनी शनाख्त करवाता है। खूब मुझे उसके अंदर से ना, मैं खुद कहीं कहीं खुद को महसूस करता हूँ। मैं बहुत बाहर अंदर मैंने बहुत घूमा है, मुल्तान को भी मैंने बहुत अंदर तक घूमा हूँ। मुझे जहाँ भी कहीं कोई पुरानी कदीमी इमारत नजर आती है, मैं उसको अपने कैमरे में, मोबाइल ने हमें सबको फोटोग्राफर बना दिया, मैं महफूज करता हूँ और आप उसे फौरन शेयर करते हैं। फिर मुझसे शेयर। अच्छा, मैं अगले दिन कोई पिछले मुहर्रम की बात है, ट्रैफिक ब्लॉक थी, मैं घंटे घर के पीछे से निकला, मैंने देखा कि घंटे घर की कदीम तरीन इमारत के पीछे
جو وہاں اروڑ خانہ بنا ہوا تھا, جو وہاں گند پڑا ہوا تھا, تعفن آ رہا تھا, مجھے اتنا دکھ لگا کہ یہ ہے کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں. میں نے فٹافٹ تصویریں بنائی اور لگا دی فیس بک پہ کہ ہم کوئی تو ذمہ داری لے, خدا رہا کوئی ذمہ داری درست, بالکل. اچھا ہم سارے شہر کو چمکا دیں, کینٹ چمکا دیں, گلگش چمکا دیں اور اپنی قدیم عمارتوں کے ساتھ یہ جبر و ظلم ہم کرتے جائیں, ہم دینے دار ہیں. اب آپ اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو ظاہر بات آپ کو تکلیف ہوگی. ہمیں سڑک سے اڑتی ہوئی خاک اپنے چہرے پہ اور بالوں میں پڑتی اس لیے بری نہیں لگتی کہ وہ میرے وسیب کی مٹی ہے. مگر وہی مٹی جب ہماری قدروں پر پڑے گی تو ہمیں تکلیف دے گی. کیا خوبصورت بات ہے. ہمیں تکلیف دے گی. ہمیں اپنی قدروں کو بچانا ہے. اپنی اقدار اپنی روایات کو ڈوبتا اور مرتا دیکھ لیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہمارے اسلاف کی پرانی حویلی تھی, اس کی اپنی 200 سال کی تاریخ. 1876 میں 70 میں کہیں یہ قائم ہوئی تھی. پر دادا جی اور پھر دادا جی, پھر والد صاحب, چچا, پھوپھیاں, پھر ہم اور ہمارے بچے یہاں تک پیدا ہوئے. پھر اس کے آگے نظام بدل گیا. بدلا جو وقت گو کے رفاقت بدل گئی. سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی. ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا, پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. ہم بھی بدلتے ضرورتوں کا شکار ہوئے. میں تو تب بھی نام آنکھوں سے میں نے اس کو گرتے دیکھا تھا, میرا دل نہیں چاہتا تھا, مگر میں برٹن سے اس کی گرتی ہوئی عمارت تصویریں کھینچنے آیا تھا. اتنا میرا درد کو محسوس کیجیے. مگر میرے جو کزن ہیں, اٹھا دو اتنے بلڈوزر چڑھا دو اور اٹا سٹ دو. میں کہ یار کچھ احساس سے, کچھ نرمی سے 4 کی بجائے 6 دن لگا دو. اس میں میرے اسلاف کے میری تہذیب ہے اس کے اندر, میری پرورش ہے اس کے اندر. مجھے اپنے کمرے گرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے, اپنی چھتیں, حالانکہ میں اس سے بہتر چھت میں تھا, مگر مجھے لگا کہ میرے سر سے چھت جا رہی ہے. وہ بڑی مطلب ادب پرور حویلی تھی. میرے والد صاحب کو خود شاعر نہیں تھے, مگر بہت ادبی بڑا ذوق تھا. پرشین, عربی, انگلش اور اردو سرائکی, ان زبانوں میں ان کے ہاں اقبال ارشد صاحب کہا کرتے تھے, اللہ انہیں بری کی رحمت کرے, کہ عامر شہزاد ہم تو سن 60 میں تمہارے گھر میں مشاعرے پڑھا کرتے تھے جب ہمارا آتش جمع تھا. تو میں نے کہا حضور ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, مگر آج بہت کمال کا لب و لہجہ, کمال. اور بھی احباب بتایا کرتے ہیں. لاہور میں ایک صاحب حسین مجروح صاحب سے میری ملاقات, جب انہیں پتہ چلا کہ میرا تعلق اس لگے, ہم بہت عالم جوانی میں اپنے بڑے شعراء کے ساتھ وہاں آیا کرتے تھے, وہ محافل ہوا کرتی تھی. مطلب اس کے اور بڑے حوالے ہیں, مگر میں نے چونکہ ادب کی بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک ادبی حوالہ. وہ ایک اپنی مکمل تاریخ, میری جو پہلی کتاب شائع ہوئی 2011 میں, اس پہ ہمارے شہر کے بڑے ادیب ہیں, میں تو خیر یہی مانتا ہوں, شاکر حسین شاکر نے کہا کہ ایک پورشن تھا اس میں, آپ کے سامنے پڑھی یار یکتا 2011, اس میں ایک پورشن تھا میری ان حویلیوں کی تصاویر کا اور میرے اسلاف. تو کہنے لگا دیکھیں عامر شہزاد نے ملتان کے ایک خاص خطے کی تاریخ کو محفوظ کر لیا. یقیناً اب یہ ہے کہ بکھرے گی نہیں, یہ سمٹ گئی نا ایک جگہ. اب یہ بغیر نا شاید اس میں 1876 کے لیٹر بھی لگے ہوئے ہیں, اس میں 1907 کے لیٹر بھی لگے ہوئے ہیں, نواب رامپور کے 1947 کے لیٹر بھی لگے ہوئے ہیں, 43 کے. صبح کی ساری چیزیں, میرے اسلاف کا ذکر یہاں ملتان کی در و دیوار پہ نقش ہے. عیدگاہ میں دیکھ لیں, شاہی میں, اسکولوں میں جا کے دیکھ لیں, جو پرانے. میرے پردادا جی انجمن اسلامیہ کے جنرل سیکرٹری تھے. آج شاید کوئی جانتا بھی نہ ہو. بالکل ایسی نہ ہمارا وہ رول رہا ہے. میں نے اگلے دن ایک بزرگ نے, پاک گیٹ کے ایک بزرگ نے, تنویر گیلانی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں, انہیں روک کے کہا اس بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ فلاں فلاں خواجگاہ. انہوں نے کہا نہیں, اس کے علاوہ جانتے ہیں جس کا علم آپ اٹھا کے پھرتے ہیں, ان کے بزرگ اس کے جنرل سیکرٹری تھے. کہنے لگے اچھا, میرے لیے بڑی حیرانگی والی بات ہے. پھر انہوں نے مجھے نا, ان دنوں میں ناشتے ہوتے ہیں, مجھے اسپیشل بلایا یہ بات جاننے کے لیے. میں نے پھر وہ دکھائی, کچھ انگریز کی کتاب ہے ہوئے زو, اس میں ذکر ہے, میں نے وہ دکھایا انہیں. ہی واز دا جنرل سیکرٹری سو اینڈ سو سیشن, اس میں لکھا ہوا ہے موہنڈن اسلامیہ, اور یہ سکولوں کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. سو وہ میں نے کہنے لگا یار میں مجھے اس ضمن میں ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا, ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا. بہت اچھا ہے, یہ بڑا فٹ آتا ہے. اچھا, آپ دنیا کے بہت سارے ممالک میں گئے, اور خاص طور پر جو گلاسگو ہے, وہاں کا تذکرہ عموماً آپ کی کتابوں میں ملتا ہے. آپ گرم علاقے سے سرد علاقے میں گئے, لیکن یہاں کی جو محبت اور گرمی تھی وہ وہاں بھی آپ کے اندر موجود رہی, اور آپ نے وہاں رہ کر بھی علم و ادب کو فروغ دیا. تو یہ بھی ایک تاریخ ہے جو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے. میں گلاسگو میں نے -12 تک کا ٹیمپریچر دیکھا ہوا ہے. اللہ. اچھا, جس دن -12 تھا لوگ
कमरों में खिड़कियों में से बैठ के मंजर देखते थे, मैं बर्फ़ में घुमा करता था। तो मुझसे एक सामने एक फैसलाबाद की फैमिली, उनमें से एक साहब ने मुझे मुखातिब कर कहने लगे क्या बात है, मतलब इतनी बर्फ़ पड़ रही है। मैंने कहा मैंने कहीं जाना है कि गाड़ी में। मैं कहा इस बर्फ़ पे गाड़ी चलती है, बसें चलती हैं एक मखसूस रूट, तो मैं बस में जाऊँगा, बस में आऊँगा। कह रहे बर्फ़ में खड़े क्यों हो? मैंने कहा मेरी बात सुनिए, मैं जिस शहर से आया हूँ ना, जिस खित्ते से, वहाँ की गर्मी का लुत्फ मैं अभी तक उठाता हूँ। वाह वाह, भले मेरे घुटने बर्फ में धंसे हुए हैं, मगर मेरे दिमाग में वही गर्मी मौजूद है। सो मुझे ठंड उस तरह नहीं लग रही जिस तरह आप फील करते हो। अच्छा, यहाँ अगर इजाजत है तो मैं एक शेर पेश कर दूं, वही वाला गर्मी जो आपको पसंद है। कि कोई पूछे कि वफा और मोहब्बत है कहाँ, मैं बताऊं कि ये गर्मी मेरे मुल्तान में। मैंने फिर भी सुनाया, फिर मैंने गर्द गर्मा का दागा भी सुना। कहना मैंने सुना हुआ है। मैंने कहा सुना हुआ है, हमने पहना हुआ है, हमने ओढ़ा हुआ है, हम इसको रोज देखते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 26 ममालिक देखे राजा साहब, वाह, जिनमें ट्रेड सेंटर की छत भी शामिल है, वाह, जिसमें बाद में जहाज, उसी साल मई में मैं गया और सितंबर में उसमें वो जहाज़ों का हादसा जब हुआ था, तो मैं सितंबर 24 को मैंने विजिट किया था। अच्छा। मैं उसकी टॉप 1545 फीट हाइट पर उसकी छत तक मैं गया हुआ हूँ। और जब मैं ग्लासगो में था, जब मैंने ये हादसा देखा, मैं अपनी बच्ची का चेकअप कराने गया हुआ था डॉक्टर के पास, तो मैंने देखा कि टीवी के अंदर ये सब दिखाया जा रहा था। तो मैं दहल गया कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं 2 महीने पहले तो मैं वहाँ से, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो फलक को छूती हुई इमारत यूं खाक होकर, मगर फिर मैंने देखा कि वो हुसैन सर साहब ने कहा एक पत्ता फना दर से फना दे गया मुझे, गिरता हुआ पत्ता मुझे दर से। मैंने कहा कोई है, फना करने वाला भी है। क्लेम ये था कि 100 साल नहीं गिरेगी। वो अपनी तामीर के 29वें साल वो ज़मीन बोस हुई है। अब वहाँ यादगार बनी हुई है। कहाँ गया वो तकब्बुर व गुरूर? यकीनन ऐसी वहदानियत को तस्लीम जिसने किया है, वो तकब्बुर की बजाय फ़ख्र कर सकता है, क्योंकि उसने तस्लीम किया है। अच्छा, वहाँ ग्लासगो में रहकर आप रेडियो से भी वाबस्ता रहे? मैंने 7 साल रेडियो किया, टीवी किया। ठीक। ATN एशियन टीवी नेटवर्क सिखों का था। उनसे मैं, मुसलमान भी थे उसके, मैं भी उनका प्रोड्यूसर था। और मैंने वहाँ बहुत से प्रोग्राम किए हैं। और मेरे जो मेहमान मेरे पास आया करते थे वो बड़े हाई प्रोफाइल थे। लोकसभा के मेंबर आया करते थे, पार्लियामेंट के मकबूल शहीद का बेटा ये मेरे पास आया, अपना जहांगीर बदर मरहूम, फारूक लगारी, शामुद कुरैशी, ये लोग आए मेरे पास। और भी कुछ लोग थे, ये आशफा रियाज और रियाज फतियाना, इस लेवल के लोग। अच्छा, उधर से जिया पराधा मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से, बतौर आर्टिस्ट नहीं, राज बब्बर, ओमपुरी मरहूम, ये मेरे प्रोग्रामों में आए। तो मुझे बड़ा फ़ख्र रहा कि मैंने एक बड़े प्रोफाइल, बड़े कैनवस पे बैठ के, और मुझे सीखने का बड़ा, देखे ना अटल तिवाड़ी है वहाँ के, अस्कर अवार्ड याफ्ता है, वो मेरे पास आए, वो राइटर है, स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, मुझे लगे जैसे कोई मोतियों से खेल रहा है। मैंने कहा क्यों ना अस्कर अवार्ड मिले ऐसे बंदे को। फिर वही लबो लहजा, वही अंदाज़े गुफ्तगू हमारे यहाँ भी मौजूद है। असलम अंसारी को देख लीजिए, असद रीफ को देख लीजिए, इन्हीं की औलादों को देख लीजिए। तरबियत बोलती है राजा साहब, डिग्रियां नहीं करती, फैसले फरासत के। तरबियत बताती है खानदान कैसा बस है। ये। वाह वाह वाह। और वो दस्तारें बांध लेने से कुछ नहीं होता, वाह वाह वाह, जब तक उसका एहतराम पीछे ना हो। बेशक ऐसी। तो मैंने देखा है कि तरबियत कहीं, अटल तिवाड़ी का खानवादा, मैंने उससे पूछा, उन्होंने कहा मेरे सारे पढ़े लिखे हैं, सब कलम करता से जुड़े, निस्बतों का असर भी होता है। निस्बतों का असर भी होता है। मैंने कहा ऐसे नहीं आप बोल रहे। खूब। अच्छा, वहाँ अखबारात और रसाले से भी मैं मुंसलिक रहा, मैं चीफ एडिटर रहा, आवाज़ यूके के नाम से इदारा। पहले मैं उसका बतौर नहीं, मैं शुरू दिन से उसका 4th पार्ट का मैं एज ए ऑनर उसमें शामिल हुआ। अच्छा। और चीफ एडिटर रहा। अंधों में काना राजा था ना, सारे तो राजा कौसर से भी नहीं ना होते, तो वो मुझे फिर उन्होंने चीफ एडिटर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनिएगा, हमने 300 अखबार निकालना शुरू किया और हम 6000 तक गए, फिर हम 10,000 पे चले गए। अच्छा। 10,000 की तादाद में। कम्युनिटी पेपर था, कलर्ड पेपर था, कमाल है, 16 सफ़ात का, 12 सफ़ा, और वो जो लीगल साइज होता है, हेरल्ड और इस टाइप के जो अखबार है, इवनिंग टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने रेडियो पे पहला हिस्ट्री में बरतानिया की उर्दू रेडियो ड्रामा बनाया, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया। ठीक है, मौसम साथ रहने का उसका उन्वान था, उसका टाइटल। और उर्दू अखबार तो खैर पहले निकल रहा था, लंदन में भी था, नवाए वक्त के नाम से भी निकलता था लंदन में अखबार, नवाए वक्त लंदन, रिसाले भी निकलते थे, मगर ग्लासगो में स्कॉटलैंड में पहला उर्दू अखबार का मैं, आई वाज द वेरी फर्स्ट द मैन। यानी ये इतने एजाज़ात जो हैं वो आपने वहाँ रहकर हासिल किए। मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए बड़ा बेशक। मैं अपने लिए जब मैं कहता हूँ कि मेरे खित्ते की, अच्छा फिर वहाँ मैं
रेडियो पे हर महीने का एक प्रोग्राम सराइकी में करता था। वाह वाह क्यों? वाह, अपने खित्ते की जुबान है, अपनी जुबान है, अपने वसीब की जुबान है। उसकी मैं सजा तो नहीं कहूँगा, जजा भी खैर मैं नहीं कह सकता, वो क्या मिली कि यहाँ के मुझे अभी तक टोटल काम सराइकी चैनल्स पे मिला है। अभी तक किसी उर्दू चैनल पे काम नहीं किया। अभी रेडियो कर रहा हूँ तो सराइकी शो है, वसेब किया टीवी तो सराइकी शो है, पीटीवी पे गया होम पे तो उन्होंने सराइकी शो दिया। अब तो एंकरी में मुझे कहीं की उर्दू के लफ्ज भूल जाते हैं, रवानगी नहीं रहती ना। नाजरीन, बात जो है वो बड़ी दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ रही है और मुख्तसर होने का नाम नहीं ले रही, तो यहाँ मुझे एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए कि कलम मैं तो उठाकर जाने कब का रख चुका होता, कलम मैं तो उठाकर जाने कब का रख चुका होता, मगर तुम हो कि किस्सा मुख्तसर करने नहीं देते। क्या बात। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फे के बाद वापस आते हैं और फिर आमिर शहजाद सिद्दीकी की जो किताबें हैं कॉलम की, इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब आमिर शहजाद सिद्दीकी 400 से ज़्यादा कॉलम लिख चुके। जो कुछ माशरे में हो रहा है, जो कुछ हमारी आंख देखती है, जो कुछ हम महसूस करते हैं, यकीनन कॉलम जो हैं वो उन्हीं का अक्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आमिर भाई से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कॉलम निगारी है, क्या ये वक्त की ज़रूरत है, या महज अपने दिल की तसल्ली के लिए हम चंद हरूफ लिख देते हैं और फिर वो अखबार में छप जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमने एक कॉलम लिख दिया? तो आमिर भाई, इस पर ज़रा बात कीजिए। बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया है, मगर इससे पहले वो जो मुख्तसर वाली बात हुई थी ना, वो बात करने के हजार रास्ते हैं। हमने सीखा है इख्तिसार मियां, तो ये भी इख्तिसार का एक पहलू था। तो कॉलम कतन दिल की तसल्ली के लिए नहीं लिखा जाता। दुरुस्त। ना ही हर शख्स कॉलम लिख सकता है। खूब। और आपको मजे की बात बताऊं, ना हर शख्स कॉलम पढ़ सकता है। खूब। दोनों बातें खूबसूरत। लिखने का एक सलीका है, कॉलम पढ़ने का एक सलीका है। एक मौजू है, मैं अभी एक हवाला दूंगा, उसको बयान करके उस पर बहस करके उसको समेटा जाता है, आखिरी 2 लाइनों में तजावीज़ दी जाती है। बिल्कुल। वगरना ना अखबार का सफ़ा भरना मकसूद है, ना अपनी फ़ोटो, वो दौर गए, वो वक्त गए। फेसबुक ने आपको इतना फेम कर दिया है, यहाँ फोटो लगता है अमेरिका से विकी का फोन आता है। बिल्कुल ऐसी की खांदे पे हो, मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है। अखबार में छपी फोटो को अमेरिका से फोन आएगा क्या? लाहौर से आएगा, पिशावर, ठीक होगी बात। सो वो क्रेज तो हो गया ख़त्म। बिल्कुल दोस्त। मैं बरतानिया में अपने घर में एक एशियन चैनल, क्योंकि वहाँ सारे इंग्लिश चैनल हैं, एशियन चैनल लेना पड़ता है। और हम देखने के लिए, हम जो बाहर से गए हुए लोग होते हैं, सेटलर, हम लेके रखते हैं। मेरे पास एयरवाई था, उसमें 2005 में जब ये ज़ल्ज़ला आया, उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक वहाँ गए ज़ल्ज़ले वाले बच्चों से जिनके माँ बाप ज़ल्ज़ले की ज़द में आ गए थे। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। आमीन, आमीन। उन यतीम बच्चों के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली। सो इधर भी यतीम बच्चे, इधर भी यतीम बच्चे, एक तरफ वो बैट लेके खड़े हैं। बच्चों से कहा गया कि बॉल कराओ। बच्चे ने बॉल कराई तो बॉब हॉक ने अज़रा मज़ा कहा, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल। ये टीवी पे खबर चली। सो मैंने देखा। अच्छा मुझे बताएं, इस खबर को कितने लोगों ने देखा होगा? मगर आंख का होना इस बात की शहादत नहीं कि आप देख रहे हैं, जब तक आप दिल की आंख से। मैंने वो नो बॉल को लफ्ज़ सुना और मैंने सब कुछ छोड़ के कलम कागज उठाया, ऊपर लिखा, नहीं वाइट बॉल उसने कहा, ऊपर मैंने लिखा वाइट बॉल। फिर मैंने एक मजमून बनाया, मैं अच्छी बहस करता हुआ दहशतगर्दी पर, और वो जो खलीज पैदा हो रही थी इस्लाम और इसके दरमियान, सलीब के दरमियान, आखिरी पैराग्राफ में मैं कहाँ मुहातिब हुआ कि बाब हॉक साहब, आपका ये कदम, ये जेस्टर काबिल सताइश, काबिल सलाम। आपने हमारे मुल्क में आने वाले ज़ल्ज़ले के बच्चों के साथ जाके उनकी दिलजोई की, बड़ा ज़बरदस्त, आप बहुत सा फंड देकर है। मगर ये जो दुनिया एक पिच है ना, ये दुनिया एक पिच है, इसके दोनों जानिब आप ही के अंपायर खड़े हैं जो हमारी हर बाल को वाइट बॉल करा दें। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, कमाल है। और मेरे इस कॉलम को वो वहाँ छपा, आवाज़ यूके में। वहाँ से एक मेरा कम्युनिटी फ्रेंड था, वो इंग्लिश पेपर पे काम करता था, उसने उसको पढ़ के अपने बॉस को दिखाया। बॉस ने कहा, यार दिस इज़ द पॉइंट। मुझसे फ़ोन पे इजाज़त ली गई, मुझे पे किया गया, उसको इंग्लिश तर्जुमा करके संडे टाइम में लगाया गया। वाह। एक ये, और एक कम्युनिटी के ऊपर मैंने लिखा था, जो नौजवान बच्चे
दूसरी तीसरी नस्ल वहाँ रहती है जो यूथ में आ जाते हैं, वो बड़ों की कदरें करना भूल जाते हैं। उसमें मैंने लिखा था, मैं लाइब्रेरी में बैठा था। अब लाइब्रेरी क्या होती है, कुतुबखाना क्या होता है, इल्म आगई का मरकज। दुनिया में जहाँ जहाँ हमले हुए हैं सबसे पहले कुतुबखाने जलाए गए हैं, तारीख का पूरी तारीख, लाखों की तादाद, इराक के, बगदाद के, कहीं भी शाम के, बिल्कुल ऐसी। और वहाँ हमारे नौजवान बच्चे क्या कर रहे हैं, वो जो बर्गर सैंडविच खा रहे होते हैं ना, जब वो आधे बच जाते हैं, लाइब्रेरी के शीशे पे मार रहे थे। बिल्कुल ऐसी। और वो गोरी थी, हमारे इलाके में था, पोलक शील्ड में, और वो गोरी बाहर जाती थी, वापस आती थी, उनको मना करके आखिर अंदर आके बुड़बुड़ करती थी। मैं गया बाहर, मैंने कहा बच्चों क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये क्या जगह है, यहाँ तुम्हारे बड़े आके अखबारात पढ़ते हैं, जराइद, ये तुम लोगों के लिए बैठे हैं, बजाय सैराब होने के तुम उसको खराब कर रहे हो, कुछ तो ख्याल करो। तो बड़ा दुख होता था। मैंने उसमें भी कॉलम लिखा था, वो भी उस अखबार ने द थर्ड जनरेशन के नाम से उसने उसको ट्रांसलेट करके उसमें लगाया था। गोया हम ही को जुर्रते इजहार का सलीका है, अच्छा है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे, हम ही बोलेंगे। वाह, खूब। अच्छा, आपकी 5 किताबें अब तक आ चुकी। फिर हमें वो ये भी कहते हैं कि बहुत बोलते हैं। नाज़रीन, एक तो देखिए ये हरफे यक्ता, ठीक है, अभी आमिर भाई से इसके बारे में पूछते हैं। फिर ये लफ्ज़ जी उठे कि हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हम भी लगता है मर नहीं सकते, क्या अच्छा है। और फिर साहिब क़ितास, और इसके अलावा 2 कुतुब और हैं, तसल्लियों के औराक़ ज़ीस्त और तसल्लियों के हरूफ। वो इन्हीं के दरमियान। तो पहली किताब जो थी इनमें से वो हरफे यक्ता थी 2011 में। अच्छा, उसकी कोई ख़ास बात, कोई एक उस किताब की? उसमें ज़्यादा कॉलम है वहाँ के छपे हुए, बरतानिया के मेरे 64 कॉलम है उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दूसरी भी टोटल यहाँ के मसाइल। उसके बाद फिर लफ्ज़ जी उठे, उसमें क्या है? उसकी वो कॉलम है, मैं नसर निगार हूँ, कॉलम लिखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो सारे यहाँ के मसाइल है, यहाँ के मसाइल, पाकिस्तान के और हमें पे। ठीक है। अच्छा, जो औराक़ ज़ीस्त है, तसल्लियों के हरूफ, औराक़ ज़ीस्त यानी पड़ी, ठीक है, तसल्लियों के हरूफ, वो तीसरी बुक है, वो भी कॉलम है, वो भी मसाइल पर है, ठीक है, सियासी, समाजी, मुआशी, माशरती। अच्छा, उन दिनों बिजली बहुत जा रही थी, बिजली एक बज़ीला बात सुनिएगा। हमारे राजा नादिर परवेज साहब मिनिस्टर थे बिजली के, और गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो राजा नादिर परवेज साहब ने कहा कि 31 दिसंबर 2009 को बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। उन दिनों लोड शेडिंग ऐसा आलम था कि लोगों को दिल करता था उठ के दीवार में टकरे मारे, चिलचिलाती धूप में लाइट बंद हो जाती थी। अच्छा, इस असना में उन्हें कहीं नाअहल करार दे दिया गया राजा नादिर परवेज को। बावजूद सखर में एक जलसा था, उन्हें नहीं, इस्लामुद्दीन शेख को, वो सखर में, ये दोनों हजरात प्राइम मिनिस्टर साहब ही उनके जलसे में तकरीर करने गए। वहाँ लोगों ने कहा जी वो दिसंबर की 31 गुजर गई, तो कहने लगे जी बिजली अभी लोड शेडिंग जारी थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने खिताब में कहा कि राजा साहब, सियासत में कभी हतमी तारीख नहीं दी जाती। अब सुनिएगा, मेरे कॉलम को उन्वान देखिएगा और मजा लीजिए। उसका उन्वान था 32 तारीख। तो मैंने कहा गिलानी साहब, आप उन्हें कहे कि तारीख 32 दे दे, ना आएगी ना झगड़ा, ना लेना ना देना, 29 फरवरी 30 फरवरी खत्म, आप तो मुबर्रा हैं। तो ये था। अच्छा, इसके बाद जो अगली किताब थी साहिब क़ितास, ये लेटेस्ट है, आपके हाथ। अच्छा, तो इसकी खुसूसियत, इसमें क्या कोई खास बात? इसमें डॉक्टर अनवार अहमद साहब ये इनकी खुसूसियात में आता है कि यहाँ डॉक्टर अनवार साहब ने लिखा, उसके पीछे डॉक्टर सदरीब का तबसरा है, उससे पहले अताउल कासमी साहब का है, उसके पीछे मलिक वसीम लाबर साहब हैं, और बीच में अपने अच्छा इत्तेफाक से जो सफ़ा खुला उसमें हुजूरी बाग रोड पर पक्कों की ये हवेली देखे ना, ये सामने नजर आ रही है, गिरती हुई देखना। जी हाँ, अल्लाह अकबर, ये तब गिर रही थी जब मैंने, अल्लाह, इसकी दीवारें देखिए, इसके कमाल अजीम इमारतें गिरनी नहीं चाहिए। बहरहाल बाहर की दुनिया में इनको संभाल लिया जाता है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद जो आखिरी किताब थी आपकी, जो यही किताब है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो माशाल्लाह आपका क़िरतास व कलम का सफ़र है, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको इनिशिएटिव देती है और आप लिखने पर मजबूर हो जाते हैं, वो क्या ऐसी ख़ास बात है? उसके पसे पर्दा क्या ऐसी चीज़ है कि जो अभी नज़रों से पोशीदा है और आप मुसलसल लिख रहे हैं और लिखते रहेंगे? हमारा मकसद तो इस्लाह मुआशरा है, ठीक है, या इस्लाह दुनिया है, अगर कोई हमसे करा पाए तो। बिल्कुल ठीक। कलम नवीस और कॉलम नवीस बिलखसूस, कॉलम नवीस को अदब नवाज कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, बिल्कुल सही। मगर मैं समझता हूँ कि शायरी से भी बड़ी सिंफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायरी 6 लफ्जों में 8 लफ्जों में हो जाती है, हमने सीखा है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। मेरा शेर ही काफ़ी है ज़माने के लिए। हाँ जी,
बस एक शेर ही बहुत। मगर यहाँ तो आपको 3 से 4 सफ़े का कॉलम एक पूरी दलील के साथ आना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे एक सीक्वेंस के साथ आना पड़ता है कि रब्त के साथ। आप वो नहीं ना बातें उलट पलट सी फिक्रे रटे रटे से इस पे काम नहीं चलता, क्योंकि ये करंट अफेयर होता है। बिल्कुल सही। आप करंट अफेयर में कोई बदध्यांती नहीं कर सकते। मुझे कासिम जलाली का एक ड्रामा याद आ रहा है, मशहूर डायरेक्टर और एक्टर थे, राइटर भी थे। वो शहनशाह बने हुए और उन्होंने यूं अंगूठियाँ पहनी और अपने उस वक्त के राइटर को बुलाया हुआ है और उसे कहते लिखो। हुजूर मगर ऐसा हुआ तो नहीं। उनका हम चाहते हैं ऐसा हो, तुम लिखो। मैं चाहता हूँ कि कल मेरे अवाम ये पढ़े। उन्होंने कहा मगर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा हम चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं, हम वो चाहते हैं जो सच है वो किताब की इस तारीख में, ये तारीख मुरतब होती है 200 साल के बाद। जब राजा साहब आप और मैं, अल्लाह आपको 600 साल की जिंदगी दे, तो ये तारीख गलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब ये जो आपकी किला हमारी जो वॉल है, जो जितनी महदूद है, ये सारी जो शहर के गिर्द घूमती है, इसको जब दोबारा मुरम्मत किया गया है, इसमें बड़ी ईंट लगा दी, कश्ती ईंट। तब हमने कॉलम लिखा, हम चीखे कि आपके लिए क्या मसला था छोटी ईंट का फरमा बनवाना। मौरख आता है 300 साल, वो कहते हैं जी 600 साल 400 साल पुरानी, ये ईंट तो 400 साल की है। इससे पहले तो बारीक ईंट चलती थी, बल्कि 100 साल पीछे बारीक ईंट वही बनवा कर लगवानी चाहिए ताकि हमारी तहजीब जो है। अच्छा, एक तो खूबसूरती है, अभी भी चंद इमारतें कायम है। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे साहिब इक़्तिदार को, साहिब इक़्तिदार को, साहिब ये जो बड़े लोग हैं, इनको कब नजर आएंगी? सिर्फ हम क्यों देख रहे हैं? गोया कॉलम जो है वो एक हसास मौजू है, और वो ज़ाहिर बात है एक हसास शख्स के लिए अहमियत का हामिल है कि वो मुआशरे की उन तमाम खामियों को, उन तमाम मसाइल को, मसाइब को लोगों तक पहुँचाने का जरिया है। अच्छा, सिर्फ मैं ख़ास तौर पर मैं बतौर कॉलम नवीस सिर्फ ये उदासी की बातें नहीं लिखता। मेरा एक सफ़र, छोटा सा मैंने सफ़र किया नारायण का खान का, जील सैफुल मलूक तक पहुँचा। तो मैंने कहा कि ये मोहब्बतों का पानी, ये तो बातें करता है, कभी इसे छू कर तो देखें। लतीफ़ बातें की, क्या खूबसूरत। हमने कहा आप जरा दरियाए कुनहार से बात तो करके देखें, देखें वो आपसे किस दौर की बात करेगा और किस किस की बात। और झील सैफुल मलूक एक मोहब्बत के नाम पे कायम है। इसको तफरीका है, बेशक है, मगर जरा इसको, इसकी लतीफ़ एहसास तक जाके उसकी बुनियाद तो देखें तो सही कि कहाँ वो शहजादा आया और कहाँ वो परी मलूक वहाँ से उतरी। आमिर भाई, आपसे गुफ्तगू का जो सिलसिला है दिल करता है कि उसे मुसलसल जारी रखा जाए, लेकिन वक्त की तनाबें खिंची हुई हैं और हमारे मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई खुसूसी पैगाम जो है वो अता फरमाए। मक्स न्यूज़ के जो हमारे देखने वाले हैं, मैंने शुरू में कहा कि ये एक गनीमत और नेमत जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह इस सरज़मीन औलिया, सरज़मीन औसिया, आपने ग्लासगो का जिक्र किया था, शहर का बीच में बात रह गई। ये मेरा पहला, वो मेरा दूसरा शहर है। मैं वहाँ भी यही कहता था कि ग्लासगो में रहने वाले अक्सर लोग जो हैं सरज़मीन औलिया से उनका ताल्लुक़, मुल्तान के लोग हुआ। तो ये गनीमत हमें यहाँ मिली है और मैं समझता हूँ कि हमें इसको अपनी मोहब्बतों से कायम रखना है, इन्हीं जज्बों से कायम रखना है जिस जज्बे का इज़हार आज राजा कौसर सईदी करते हैं या इसके पीछे जो बिहाइंड द कैमरा है अकमल वैस या उनकी टीम करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह हम इसको कायम रख सकते हैं। नाज़रीन, जनाब आमिर शहजाद सिद्दीकी, हमा जहत शख्सियत के मालिक, आज उनके साथ गुफ्तगू करके बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा मज़ा आया। और वो बड़े शायराना, गो शायर नहीं है लेकिन शायराना ज़ौक़ उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत अशार उन्हें याद होते हैं और वो उसका बरमला इस्तेमाल भी अपने प्रोग्रामों में बतौर कंपेयर करते रहते हैं। और यहाँ इख्तिताम सुखन भी मैं एक शेर पर करने जा रहा हूँ जो उन्हीं की नज़र कर रहा हूँ कि अभी तो चंद लफ्ज़ों में समेटा है तुझे मैंने, अभी तो चंद लफ्ज़ों में समेटा है तुझे मैंने, अभी मेरी किताबों में तेरी तफसीर बाकी। भाई बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में एक और साहिब इल्म दान के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज अपने एंकर राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.